Hi guys, hello everyone, welcome to my channel. And today we have a very amazing student from Russia. And वो अभी रशिया में ही बैठा हुआ है जहां से हम उसका पॉडकास्ट ये शूट कर रहे हैं. And do not forget to subscribe the channel because lot of videos are coming up about lot of different countries and foreign courses. ठीक है, तो let's start बच्चों. So we have Jayesh with us. And Jayesh, introduce yourself. Hello, myself Jayesh, and I'm a 4 year student from Russia pursuing MBBS. Uh, Basically, I am from Bashkir State Medical University, Ufa, which is located in Republic of Bashkortostan. So let's start. Okay. So, Jayesh, सबसे पहले तो how's the weather? I've heard it's very cold in Russia. Yes, it's cold right now. It's around, I guess, -12 right now. Can you show अपना विंडो से व्यू दिखा सकते हो like how Yes, sure. snowy your place is? So let's guys see. जयेश हमें दिखाने वाला है कि कितनी बड़ी बड़ी बर्फ होने वाली है अभी. Mm. Okay. Oh my God. It looks like a little heaven to me. It's completely It snowy. seems heaven, but it is not. But it's a sunny day. Like you can see a lot Yes, of it's snow. today, Hmm. after 10 days. After 10 days, okay. It was like completely dark last 10 days. Dark. Yes, Okay. And can you give a small glimpse of your room as well, where you were staying? yes, sure. Hmm. Yes, sure, I can give you. Like, Okay, so you are two people living in one room. no, there are like occupancy of 3, 4. It's Okay. based on the hostel. Okay. So, ठीक है. So let's start. So we have a very wintry glimpse of Russia, and it's a beautiful country. So सबसे पहला question जयेश मेरा तुमसे ये है, how much you scored in NEET exam? I got 550. 550. Yet you decided Hmm. to go to Russia and not take another drop. Why? And because like it was my second attempt. Last attempt I got on the first attempt I got 467. Hmm. On the next attempt I got 550, and I guess my rank was around 45,000. Hmm. But at that time I discussed with some teachers what should I do? Should Hmm. I continue this or what? Hmm. But they tell that the competition is arising, Hmm. increasing. So you should like take your stand what you want to do. So I discussed with my parents, Hmm. and then I decided to come here. So how did you convince your parents? Because mostly if I talk about in India, Indian parents को मनाना बड़ा मुश्किल होता है कि going to Russia, Europe, Georgia, Kyrgyzstan. How you managed to convince your parents कि नहीं, it is a good course and going to. एक्चुअली मेरा मेरे पेरेंट्स का आई गेस जब मैं 6 7 में था, जब से मेरा ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है. Yes. तो लाइक मुझे किसी भी स्टेट में डॉक्टर बनना है. Yes. सो घर वालों ने देखा कि हाँ मैंने की तैयारी, बट हम्म. सडनली नहीं हो पाया ऐसा. तो हाँ. मैंने कन्विंस किया, थोड़ा हम्म. फाइनेंशियल भी डिसाइड किया. बट हम्म. फिर कुछ लोगों से सजेशंस के बाद में पता चला कि हाँ ये भी ठीक है, कर सकते हैं. अच्छा, तो तो आपके पेरेंट्स ने आपको ये ऑप्शन नहीं दिया कि यू हैव प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, व्हाई रशिया? You could have gone to private medical colleges in India. यस आई ऑल्सो Hmm. went for these, Hmm. but it was around like 70 to 80 lakhs 4 fees years back. अभी 4 years तो back. 1.2 CR होगा कम से कम. हाँ, Hmm. बट यहाँ पे जब ऑप्शन सुने तो आई गेस 20 30 lakhs के अंदर, एक नॉमिनल रेट्स के अंदर पॉसिबिलिटीज है ठीक है. तो अभी रशिया आपने में. कितना फीस पे किया? लाइक 4 years बैक आपने एडमिशन लिया, तो अभी आपका कितना अ, टोटल बजट आया होगा? जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मेरी फीस थी 2.98, लाख. like around 3 lakhs. हाँ. But every year it is like 10,000 increment in the fees. ओके. तो So right now I am paying 3 lakh 28,000 right now in the fourth year. ओके. And from this session, the first year are going to pay 5 lakhs ओके. from this session. अभी इंक्रीज हो गया. और आपने जब ज्वाइन किया तब उस टाइम एनएमसी का ये गाइडलाइन यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कि 6 साल आपको गुजारना ही है 6 बाहर. साल. हाँ, आप 6 साल की है आपकी डिग्री? हाँ 6 साल 6 साल. ठीक है. क्योंकि मेरा वो हाँ. जो गजट आया था उसके बाद में ही मेरा एडमिशन हुआ था. ओके. जो तो नवंबर अभी में गजट आया था उसके बाद 6 years, मैंने एडमिशन लिया. 5 years हाँ, आपकी पढ़ाई और 1 year आपका इंटर्नशिप है.
ऐसा? मैम बेसिकली बोलने का है कि हम्म। 6 ईयर है, बट हमारी यूनिवर्सिटी से मतलब जो भी यहाँ पे आसपास में यूनिवर्सिटी है, उनमें हर सेमेस्टर के बाद में आपकी 20 डेज की एक इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप हर होती सेमेस्टर के बाद में। तो अच्छा। जैसे अभी मेरा ये सेमेस्टर अबाउट टू कंप्लीट है, 24 से एग्जाम्स है, हम्म। उसके बाद में 20 डेज की वर्कशॉप लगती है उस रिगार्डिंग। अच्छा। तो वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि 5+1 अलग से है, वो 6 ईयर क्लासेस होती है, उन्हीं के बीच में इंटर्नशिप चलती है। ठीक है, तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते होंगे ना? हाँ, इंग्लिश है। कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक यहाँ पे क्रेडिट्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, वो रशियन लैंग्वेज में होते हैं कभी कभी, बट हम्म। बाकी जितने भी मेन सब्जेक्ट्स है वो सब इंग्लिश में होते ठीक है। सो व्हाट अबाउट द हॉस्टल फीस एंड मेस फीस? और क्या वेजिटेरियन खाना मिलता है या सिर्फ मतलब प्राइमरी फोकस इज नॉन वेजिटेरियन? हैं। नो नो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेजिटेरियन नहीं मिलता, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट आपको खुद कुक करोगे तो ज्यादा बेटर रहता है यहाँ पे, क्योंकि मैस की सर्विस बहुत लाइक स्लो है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे जो भी है बच्चे ही ऐसा सर्व कर रहे अच्छा। हैं, स्टूडेंट्स ही, हम्म। जिन्होंने मैच खोल लिया, कोई जैसे 6 ईयर के बाद में इंडिया नहीं गया तो उन लोगों ने ऐसा हब बना लिया अपना, अच्छा। ऐसा है। तो लाइक और जो हॉस्टल्स, आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अभी आपने एडमिशन रखा है, वहां से आपको कोई हॉस्टल एंड मेस सर्विस नहीं मिलती? हॉस्टल सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे, इस मेरी यूनिवर्सिटी के अराउंड 11 हॉस्टल्स है, हम्म। अराउंड 10,000 प्लस ऑक्यूपेंसी है। हम्म। और फीस बहुत नॉमिनल होती है कंपेरेटिव टू इंडिया, आई गेस मेरी हॉस्टल फीस 14,400 है फुल ईयर की, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1200 रुपये most महीना। महीना। बट इट कैन वेरी अप टू 50,000, हम्म। बट आई गेस 10,000 15,000 इज इनफ इन रशिया फॉर। हम्म। ठीक है। ओके। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज द स्टूडेंट लाइफ, लाइक यू हैव लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स और फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, या रशिया डोमिनेटेड है, कैसा है वहाँ पे? अगर मैं देखूं कि कितना परसेंटेज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा? अराउंड मेरी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स हम्म। पढ़ते हैं, उसमें से हर ईयर आई गेस 700 800 इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं। तो ओके। एट प्रेजेंट अराउंड 3,000 इंडियन स्टूडेंट्स होंगे। हम्म। सम जॉर्जियन, अलग अलग कंट्रीज के भी है, अफ्रीकन्स भी है, नाइजीरियंस भी है, और चाइनीज भी है, जापानीज भी है, और हम्म। मेजरली कजाकिस्तान, हम्म। रशियंस, सब तरीके के बच्चे हैं। हम्म। ठीक तो है। यूनिवर्सिटी में दो टाइप्स के बैचेस चलते हैं, एक रशियन बैचेस अलग चलते हैं और एक फॉरेन स्टूडेंट्स के चलते हैं। अच्छा, तो तो उसमें मे बी आपका पूरा इंग्लिश, इंडियन बैच भी हो सकता है, हाँ, इंग्लिश और में मे बी पढ़ा। आपका विद हम्म। इजिप्शियंस वगैरह सबके साथ में भी कोलैब हो सकता है। ओके। तो आप लाइक आपके ऐसा तो नहीं होता कि यू फेस सम सॉर्ट ऑफ रेसिज्म व्हेन यू गो टू रशिया, बिकॉज वी हैव गुड रिलेशनशिप विद रशियंस, अगर मैं कंट्री लेवल पे भी बात करूँ तो? कंट्री लेवल पे तो नहीं होता, बट जो यहाँ के यंगस्टर्स है हम्म। वो कभी कभी ये चीज करते हैं, लाइक दे यूज टू अवॉइड यू, ओके। ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है। जस्ट एक सेकेंड। ओके। ठीक है। सो वी वर ऑन द क्वेश्चन की अबाउट द रेसिज्म। यस। हम्म। तो यहाँ के जो यंगस्टर्स है वो फिर भी ऐसा शो करते हैं दैट दे आर सुपीरियर्स, अच्छा। बट थोड़ा सा सह लो, मतलब ठीक है। थोड़ा थोड़ा, हाँ, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, ठीक है, यू लेट क्योंकि गो। इंडियंस के अंदर भी रहते हैं, हाँ, लाइक को कर हाँ। देते हैं, क्योंकि कई अच्छे लोग भी मिलते हैं ना, हाँ, तो सही बैलेंस कर देते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स हमें देखने को मिलती है कमिंग फ्रॉम इंडिया, और इज इट मोर बॉयज मूविंग टू? नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म। लाइक आई गेस 40-60 होगा, फिफ्टी ओके। फिफ्टी नहीं, 40-60 होगा। गर्ल्स भी उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं हाँ फॉरेन कंट्रीज में जाना, हाँ। सिर्फ बॉयज प्रेफर करते हैं, है ना? चलो। बहुत सेफ कंट्री है रशिया, सेफ, हाँ। अबाउट रशिया एंड बहुत सेफ। यूक्रेन, अभी कुछ वॉर लाइक सिचुएशन आपको देखने को मिलती है और यू फील वेरी सेफ कि नहीं, हम तक कोई बात नहीं आएगी, जो है सब बाहर आएगी? नेवर, नेवर, नहीं। 4 इयर्स में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम्म। क्योंकि जब फर्स्ट आई गेस हम्म। फर्स्ट या सेकंड ईयर में थे जब हम लोग, जब यूक्रेन वाला वॉर हुआ था, हाँ, हाँ, हाँ। जब भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था उस चीज का, बस ओनली करेंसी एक्सचेंज के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, हम्म। लाइक रेट्स हाई हो गई थी और यहाँ के प्राइस हो गई हम्म। थी, सब चीजें, बट बाकी वॉर इफेक्ट्स और एक्स्ट्रा कुछ नहीं थे। दैट्स ग्रेट। एंड जो आपका करिकुलम है यूनिवर्सिटी का, वही सेम करिकुलम एनएमसी वाला ही है या कुछ डिफरेंट है? इज इट डिफरेंट? लाइक इन स्टडी, यस। जैसे कि अब मान लीजिए कि इंडिया में हमें 25 सब्जेक्ट पढ़ाई जाते हैं एमबीबीएस के दौरान, तो क्या आपको भी वही सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं या कुछ और भी डिफरेंट है विच वी कैन सी? हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे टोटल 69 सब्जेक्ट्स अलॉटेड है हम लोगों को, जो हमें 6 ईयर में करने हैं।
हम्म। बट उसके अंदर कुछ फालतू के सब्जेक्ट्स भी, जैसे यहाँ पे फिजिक्स भी लगा रखा है साथ में। बट हम्म। वो ओनली फर्स्ट ईयर्स में, लाइक अच्छा। इकोनॉमिक्स भी है, हम्म। मैथमेटिक्स भी है। मैं बेसिक बेसिक से आपको लाइक 20 दिन की क्लासेस लग रही है, 30 दिन की क्लास लग रही है, दैट्स ओवर। ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स है। और जैसे कई सब्जेक्ट, जैसे अपने मेन पैथोलॉजी है, तो यहाँ पे पैथोलॉजी को दो तीन सब डिविजन्स में कर रखा है, लाइक पैथ हम्म। पैथ अनाट एंड पैथ फिजियो। लाइक ओके। फिजियोलॉजिकली अलग होगा, एनाटॉमिकली अलग होगा, तो ऐसे 69 पार्ट्स में डिवीजन कर रखा है, बट सब्जेक्ट सब कवर्ड है। ठीक है। वेरी नाइस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली आई हैव हर्ड दैट रशियन स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं मिलता ड्यूरिंग इंटर्नशिप, वाइल इंडियन स्टूडेंट्स डू गेट द स्टाइपेंड। ये मैंने अपने रील्स हम्म। मैंने रशिया की डाली थी तो बहुत बच्चों ने लिखा था। व्हाट्स रियलिटी अबाउट दिस? रियलिटी मैम ये है कि जो रशियन स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हम्म। तो वो मोस्टली बच्चे स्कॉलरशिप्स पे होते हैं यहाँ पे, अच्छा। रशियन। हम्म। इसलिए गवर्नमेंट उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं करती है। बट इंडियन स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड जब मिलता है, जब वो कुछ एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, जैसे नर्सिंग के लिए एग्जाम होता है आफ्टर 3 और 4 ईयर, जब आप 3rd और 4th ईयर क्रॉस कर सकते हैं, उसके बाद में एक रशियन में एग्जाम होता है। हम्म। अगर आप वो क्लियर करते हैं, तो आप ऐसा ऐसा नर्स सर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग योर क्लासेस। ओके। उसके लिए आपको पे किया जाता है। किया जाता है, लाइक आप पढ़ाई भी हम्म, करेंगे, आपने नर्सिंग का एग्जाम भी क्लियर कर दिया तो लास्ट 2 years यू कैन सर्व एज अ नर्स अलॉन्ग विद योर स्टडी नर्स। एज अ डॉक्टर, एंड यू विल बी पेड फॉर दैट। Like you have to commit some hours, like in a week, like 20 hours you have to go to the hospital, like they will pay around 1,000 per hour. Like, you can earn. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और बच्चों का जो मेरे पास बहुत ज्यादा आता है कि व्हाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स गो फॉर रशिया, नॉट कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बट यू नो देर इज अ सम डिफरेंट फैक्टर अबाउट रशिया। सो व्हाट इज दैट फैक्टर कि सब बच्चे इंक्लाइंड हो जाते हैं नहीं रशिया इज बेटर, रशिया इज बेटर, व्हाई व्हाई? एक्चुअली मैम, मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं, एक तो जब गजट के बाद में श्योरिटी नहीं है कि आपको 5 ईयर कोर्स करना है या 6 ईयर कोर्स करना है। हम्म। 6 ईयर ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो 72 मंथ्स का जो एनएमसी ने कुछ बताया है कि आपको वो आपका होना चाहिए, इसलिए 6 ईयर्स ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि 5 ईयर्स वाले कोर्स में ये दिक्कत हो सकती है। हम्म। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ की ब्यूटी, सबसे बेस्ट कंट्री है। कौन सी ब्यूटी? हाँ। ठीक है, और? और क्या है, एक्चुअली लोगों को एक दूसरे सुनते तो क्रेज बन जाता है, तो वो क्रेज हाइप है रशिया के लिए। Hyped है तो ट्रू, दैट्स ट्रू। इवन हम्म। व्हेन आई पुट एनी वीडियो अराउंड रशिया, सो आई ऑलवेज टेंड टू हम्म। गेट मोर व्यूज एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक जॉर्जिया एंड एनी। कंट्रीज। ओके, सो और हाउ यू कुछ यूज्ड इट? पर्सपेक्टिव ऐसा है, जॉर्जिया में ऐसा भी है कि शायद हाँ। 3rd ईयर के बाद में आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप वो क्लियर नहीं करते उस ड्यूरेशन में, तो आपको एक्सपेल कर दिया जाता है। ये तो बड़ा रिस्की फिलीपींस हो एंड गया। जॉर्जिया में। हाँ, इसलिए तो बच्चों को डर लगता है, हाँ, तो भी डर पता लग। है चलो ठीक है, जैसे जैसे भी 6 ईयर हाँ। निकल जाएंगे यहाँ से, डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, सो आपकी भी कोई अलग से एफएमजी क्लियर करने की क्लासेस होती है? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम? मैं तो एक्चुअली प्रेप लेटर से खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी कभी कभी ऑर्गेनाइज करती है। अभी लास्ट लास्ट वेडनेसडे भी क्लासेस हुई थी, लाइक बायोकेमिस्ट्री के टीचर्स आए थे, पैथोलॉजी के टीचर्स आए थे फ्रॉम इंडिया। बच्चे बड़ा डरते हैं यार एफएमजी से, जैसे कि यहाँ पे तो उन्हें। अच्छा, एफएमजी आपने क्लियर किया, नाउ यू कैन बी अ प्रैक्टिशनर इन इंडिया, ठीक है? इंडिया। फिर आप एमडी कर सकते हैं आकर यस। फ्रॉम एनी यस। कॉलेज वंस यू लाइक क्लियर एफएमजी। फ्रॉम इंडिया, हम्म। after completing FMG, we are like Indian medical graduates. Same. Like they are going to pursue NEET हाँ, PG, we can also कितने pursue. चांसेस है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और कितने पास आउट होते हैं एफएमजी के लिए? FMG में last year it was around, I guess, 135,000 who appeared स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर एफएमजी? FMG, and 87,000 or 86,000 got passed, like around 50% in नहीं, the first group. माय क्वेश्चन, दिस इज क्रेजी बिकॉज इंडिया में हर साल 80,000 बच्चों को मेडिकल सीट Yeah. एमबीबीएस की, एंड यू आर टेलिंग मी कि हम्म। एक साल में 1,35,000 बच्चों ने अप्लाई तीस किया हजार बच्चों ने पेपर दिया। है। लिमिट्स भी है क्या एफएमजी की, लाइक तुम्हें दो लिमिट में? नहीं, अच्छा, तभी रिपीटिशन। लिमिट्स नहीं है। आपका 10 ईयर कोर्स पूरा, जिस दिन से आपका एडमिशन हो रहा है हम्म। और जिस दिन आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, वो विद इन अ 10 ईयर प्लान में होना चाहिए। और मतलब फिर अगर 6 ईयर का कोर्स लिमिटलेस है, तो आपके पास 4 ईयर्स है। हाँ। हाँ, तो आपके पास 4 ईयर्स ही FMG देने के लिए, उसके बाद भी नहीं दे सकते। अच्छा, तो लाइक अगर टोटल 10 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। तो आ गई ना, मतलब नंबर ऑफ लिमिट आपकी लग हाँ, गई यहाँ पे कि लिमिट्स आप है। हाँ, उससे ज्यादा बट नहीं कर सकते। से नहीं कर सकते हैं। ये भी अभी इस नए वाले बजट में है, इससे पहले नहीं था। ये बहुत ही अच्छा इंसाइट इंफॉर्मेशन आपने दिया है जो बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। भाई 6 साल वहां डिग्री करो, 4 साल में एफएमजी, हम्म। बल्कि मैं तो कहूंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में करो कि यू कैन अपियर फॉर एमडी एग्जाम एज वेल। हम्म।
तो 50% रेशो होता है कि स्टूडेंट्स क्लियर इन वन गो। ऑलमोस्ट, हाँ। 40-50 परसेंटेज रहता 40-50%। है। और आज तो एफएमजी का लेवल पेपर ही ऑफ है। पेपर एफएमजी का, इज इट टू हार्ड? नो, इट्स नॉट टू हार्ड। ठीक है। It is like 50%. You have to secure only 50%. No ranking system, ओके, just only 50%. अगर एक स्टूडेंट रशिया आना चाहता है तो वहां पे मैंने देखा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, कुछ स्टेट मेडिकल कॉलेज भी है रशिया में। Federal तो universities. कैसे चूज करना चाहिए उसे, किसे चूज करना चाहिए, व्हाट शुड बी द पैरामीटर? बेटर है कि बेटर है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज चूज करो, हम्म। और फीस स्ट्रक्चर्स देख के करो। मतलब ऐसे किसी कंसल्टेंसी, क्योंकि कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा हाइप बना के रख देते हैं। हाँ। जिस चीज का पैसा नहीं होता उस चीज की भी पैसा बना देते हैं। तो आप ऐसा या तो किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करो, या हम्म। फिर कोई ऐसा स्टूडेंट आपका वहाँ पे हो, उनसे बात करो, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं प्राइसेस के अंदर। तो आप कंसल्ट करें इन सब चीजों के लिए। और ग्रेट। गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज, हाँ, जो यूनिवर्सिटीज होती है उन्होंने नेट पे भी अपने बारे में मतलब फीस स्ट्रक्चर कुछ कुछ हद तक दे रखा होता है। तो आप उनसे आइडिया लगा सकते हैं कि आइडिया। कंसल्टेंट क्या बता रहा है और एक्चुअल फीस क्या है। हम्म। तो आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ और एनएमसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड हाँ, होनी चाहिए। है। सेकंड, यू शुड ऑलवेज चेक द बजट ऑन द ऑफिशियल साइड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। साइड। And third, you should prefer more of state medical colleges, that मेडिकल means government यूनिवर्सिटीज। medical colleges over private medical colleges, है ना? राइट। ठीक है। तो ये तीन चीजें which a student must check by himself or herself before getting into any foreign country or any foreign university. ठीक है। राइट। So any other thing, you have been in Russia for 4 years. What are the goods and the bads during your 4 years stay? लाइक द स्टडी पैटर्न, इट्स लाइक वे डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। लाइक इन इंडिया वी टीचर्स पहले पढ़ाते हैं, फिर आपसे टेस्ट लेते हैं। Yes. यहाँ एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ आपको पहले टास्क दिया जाता है। जैसे लाइक कल अगर पैथोलॉजी में कोई चैप्टर पढ़ना है, तो हाँ। आपको पहले खुद को पढ़ के आना है। एंड टीचर विल आस्क क्वेश्चंस, दे विल आस्क क्वेश्चंस एंड गिव यू ग्रेडिंग्स। आफ्टर दैट दे विल मेक अ स्टडी। तो स्पून फीडिंग नहीं करते, खुद से मेहनत करो हाँ, थोड़ी। खुद से करनी है। हम्म। और यहाँ पे क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है, आपको डेली ग्रेड्स मिलेंगे। और लाइक यहाँ पे फाइव फाइव ग्रेडिंग्स का होता है, 1 2 3 4 5। लाइक 1 और 2 आर लाइक फेल, 3 4 5 आर लाइक Good. पास। तो आपको डेली ग्रेडिंग्स मिलेगी आपकी असेसमेंट्स पे, लाइक आपके वर्क पे। और अगर आपकी ग्रेडिंग ओवरऑल 2.9 से कम है, तो आप अटेस्टेड नहीं है एग्जाम देने के लिए। Oh. आप एग्जाम्स नहीं दे सकते। और और अगर यहाँ पे आप भी कुछ टिल अटेंडेंस 10th का तक इशू फेल है होते हैं। क्या? यहाँ पे भी कुछ अटेंडेंस का इशू है कि 100%। 50% नहीं हंड्रेड किया? परसेंट 100%? 100%। दैट्स यस। क्रेजी। अगर हमने हॉलीडे मारी है, तो हम्म। हमें उस चीज के लिए कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, कोई डिफाइन असाइनमेंट करना कंप्लीट करना पड़ेगा कि पड़ेगा, कोई क्यों टेस्ट देना ऐसा पड़ेगा। हुआ। हाँ, नहीं तो टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, बट लिखना पड़ेगा। कुछ हाँ। 20 पेज का असाइनमेंट लिख के देना पड़ेगा, बट हमें क्लियर कराना पड़ेगा। ये तो भाई बहुत भयंकर स्कूल है। हाँ, स्कूल। स्कूल ही कंपनी में। अच्छा, एंड व्हाट आर द गुड्स अबाउट रशिया? गुड्स तो लाइक वेदर अच्छा लगता है, किसी किसी को खराब गर्लफ्रेंड लगता है, किसी बनी को या अच्छा नहीं लगता है। बनी? तुम लोग पहले से गर्लफ्रेंड, हाँ, है ना। प्रिपरेशन करते रहते हो, अब तुम एमबीबीएस में हो, तो अब जिंदगी आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? बिल्कुल बिल्कुल। कि मम्मी को भेजूंगी मैं ये पॉडकास्ट। पता है मम्मी को तो। चलो, अच्छी बात है। तो इंडियन इंडियन ही बनी है या कोई और हाँ, कंट्री? इंडियन इंडियन। चलो, that's nice. Now you people have become more mature and responsible in life. Now it's a time also. That's good. So, Jayesh, I think you have told us so many information and given a small, glimpse of what Russia looks like in winters and your room, everything. But you are literally sitting in a t-shirt. Is it a centralized heating यस, system? यस, एवरीवेयर इज हीटर। In India, I'm wearing like three clothes right now. लाइक सी, ये Oh, that's सी। nice. तो बहुत अच्छा लगा जयेश, आपने हमसे कनेक्ट किया एंड बहुत सारे रियलिटी चेक्स आई हो बच्चों को इस वीडियो के बाद मिले। बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या आपको रशिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट अस नो, आप कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं इंफॉर्मेशन इन्हीं बच्चों से गैदर करके आपको दे सकती हूँ। मेरे पास कुछ अपना पोर्टल नहीं है इस चीज़ के लिए। बट मेक श्योर कि आप कहीं पे भी जा रहे लाइफ में, आप उस चेक करें कि रिकग्निशन जरूर होना चाहिए। सेकंड, फी स्ट्रक्चर खुद से चेक कीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी को मत कीजिए। तीसरी चीज, अगर आपको कोई वहां पे सीनियर मिल जाए जान पहचान का, तो एक बार कॉल जरूर करके पूछे। जस्ट डोंट फॉलो, जस्ट एकदम से ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, बिकॉज इट्स योर फ्यूचर ऑल्सो।
ठीक है। थैंक यू जयेश फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड होपफुली Yeah, आगे मुझे और काम रहेगा तो मैं आपको जरूर परेशान करूंगी। sure, ma'am, sure. थैंक यू, थैंक यू सो मच।